Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss next topic valence bond theory. VBT बोलते हैं बेटा इसको. What is valence bond theory? First of all, we discuss this beta today. Now, valence bond theory is given by Hitler and London in 1927 and modified by Pauling and others, some other scientists also. Okay, so given by Hitler and London in 1927, modified by Pauling. Pauling ने modify किया था इसको बेटा. क्या है valence bond theory? बेटा we discuss this valence bond theory in according to two considerations. First of all, we are going to discuss in terms of energy consideration beta. First we are going to discuss in terms of energy consideration. In terms of energy consideration. एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म में हम डिस्कस करते हैं. पहले एनर्जी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इस टर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा कि कोई भी दो कंबाइनिंग एटम है, इनिशियली इफ दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, अगर एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है बेटा, देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल. ठीक है, बट व्हेन दीज टू एटम्स अप्रोच टू ईच अदर, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, देन न्यू फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन दीज, मीन न्यू इंट्रैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड. ये जो इंट्रैक्शंस हैं बेटा, दीज मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव. ओके, इफ रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बेटा, देन अट्रैक्टिव फोर्सेस, देन मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट. And if the magnitude of attractive forces is more than repulsive forces, then molecule will exist. This is the main idea of VBT in energy consideration, according to energy consideration. ठीक है ना, तो देखो according to this बेटा क्या होगा, when according to this concept, when two atoms are present at infinite distance from each other, then the forces of attraction and repulsion between them are negligible and energy of molecule is considered to be zero. ये भी होगा. Okay, then the forces of attraction and repulsion, mean no forces of attraction or repulsion are there बेटा. ठीक है ना, then there is no interaction between these. हम सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल वे से, then there is no interaction between these atoms. Then there is no interaction between these atoms. और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब एटम्स हैं तो एनर्जी भी जीरो कंसिडर की जाती है. एट दैट टाइम मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, मीन जीरो होगी एनर्जी. नाउ उस मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सपोज. नाउ पॉइंट ये है अब, but when these atoms approach to each other beta, then new interaction are produced. New interactions are produced between these. जो न्यू इंटरेक्शंस प्रोड्यूस होंगी, these are of two types बेटा. These are
divided in two types. First, attractive forces, attractive forces between, किस किस के बीच में होगा अट्रैक्टिव फोर्स? बेटा अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम. बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम. और सेकंड होगा बेटा रिपल्सिव फोर्सेस. रिपल्सिव फोर्सेस बेटा बिटवीन their nuclei and electrons. Repulsive forces between nuclei of these atoms. Nuclei as well as electrons of these atoms. Nuclei nuclei का होगा, nucleus nucleus को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, है ना. Repulsive forces between their nuclei as well as electrons. Between their nuclei as well as their electrons. Main nucleus को रिपेल करेगा और बेटा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. ये रिपल्सिव फोर्सेज होंगे, रिपेल करेंगे दूसरे को. नाउ अब बेटा इन दोनों फोर्सेज में से जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसके ऊपर बेस होगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं. अब मेन आइडिया बता देता हूँ. नाउ इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज इज मोर देन रिपल्सिव फोर्सेज देन मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट. सिंपल सा पॉइंट है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ attractive forces is more than repulsive forces. अगर attractive forces का मैग्नीट्यूड मोर है बेटा देन repulsive forces, then molecule will exist, otherwise not. Otherwise not. अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मोर होगा बेटा देन रिपल्सिव फोर्सेस, देन मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट. नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा. मेन अदरवाइज नॉट का मतलब बेटा अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मोर हो जाए देन अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा उस टाइम पर. सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल. ओके. नाउ सो ये मेन आइडिया था वीबीटी का इन एनर्जी कंसीडरेशन. अब मैं बेस्ड अपॉन दिस बेटा एग्जांपल डिस्कस करता हूँ. फर्स्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एग्जिस्टेंस ऑफ H2 मॉलिक्यूल. हम ये डिस्कस करेंगे बेटा. First example we are going to discuss based upon energy consideration, that is beta formation of H2 molecule. H2 molecule का formation मीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का formation डिस्कस करेंगे हम और एग्जिस्टेंस डिस्कस करेंगे इसके बेटा. ठीक है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बेटा. अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं बेटा हाइड्रोजन के. देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के बेटा इसके अंदर. यू नो वेरी वेल हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है. वैलेंसी वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चेक करें
और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो बेटा हाइड्रोजन कैन फॉर्म 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है अब कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, फॉर्मेशन शो करनी है हमें इसकी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ये डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो वही इन H2 मॉलिक्यूल देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बेटा। सपोज दिस इज न्यूक्लियस ऑफ one atom, atom A, and this is nucleus of another atom beta, this is atom B। इसको मान लेते हैं HA। suppose this is first hydrogen atom and this is second hydrogen atom, HB assume कर लिया आपने, 2 molecules। okay, now beta this is the electron of atom A, EA, दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए, ए एटम का इलेक्ट्रॉन है। एंड अज्यूम कर लेते हैं बेटा दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, दिस इज ई बी अज्यूम कर लिया आपने। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सो दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब क्या हो सकता है यहाँ पर, न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज टू एटम्स आर प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन एनर्जी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो न्यू इंट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, दिस न्यूक्लियस विल रिपेल टू दिस न्यूक्लियस। सिमिलरली दिस इलेक्ट्रॉन, मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ रिपल्सिव फोर्सेस को, अट्रैक्टेड को सॉलिड लाइन से दिखाऊंगा बेटा ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए। दिस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से हो, देखो ये न्यूक्लियस है, इस एटम एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, मीन दिस न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम। सिमिलरली दिस न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। दिस जो सॉलिड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट की है, दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की है, दीज आर रिपल्सिव फोर्सेस। ओके, forces represented by solid line are attractive forces, and forces represented by dotted lines are repulsive forces। ताकि आप लाइन को देखकर डिफरेंशिएट कर पाए कि जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं वो अट्रैक्टिव है, जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए रिपल्सिव फोर्सेस। हियर बेटा इन दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाउ इन दिस H2 मॉलिक्यूल, जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया बेटा that magnitude of attractive forces is more than repulsive forces here in this molecule। in H2, magnitude of attractive forces is more than repulsive forces। एक्सपेरिमेंट मतलब चेक किया गया बेटा, उस टाइम पर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा मिला देन रिपल्सिव फोर्सेस, सो H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स। सो H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, इसलिए H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसका फॉर्मेशन हम शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसका एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं। सिंपल। नाउ एक और छोटा सा पॉइंट इसके बारे में बेटा, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसके लिए, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ, दिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है बेटा दिस वन, एंड दिस इज बेटा जीरो एनर्जी है, जीरो ओरिजिन वाला पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, जीरो एनर्जी है।
अकॉर्डिंग टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज जीरो एनर्जी लाइन, ठीक है ना। Here above this energy is considered as positive, below this energy is considered as negative. Along this y axis we can take beta potential energy. हम potential energy ले रहे हैं along this y axis, and here along x axis we are going to take internuclear distance. Internuclear डिस्टेंस, स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं बेटा, दिस, ये इस तरफ इंक्रीज होती जा रही है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। नाउ बेटा अब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, सो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, एनर्जी जीरो कंसिडर की गई है। दिस नाउ व्हेन द मॉलिक्यूल्स अप्रोच टू ईच अदर बेटा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, देन न्यू फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड। और एक्सपेरिमेंटली जब फाइंड आउट किया गया बेटा, व्हेन दीज टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच टू ईच अदर देन एनर्जी डिक्रीजेस रेगुलरली, रीच अप टू ए मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू तक गई बेटा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, हमने अज्यूम कर लिया, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी का पॉइंट क्या आ गया बेटा, मिनिमम आ गया, दिस इज मिनिमम एनर्जी, दिस इज मिनिमम एनर्जी बेटा। हियर इज दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी का पॉइंट आ गया। तो बेटा ये मिनिमम एनर्जी का पॉइंट आ गया, दिस हियर, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी। तो बेटा इस पॉइंट पर एनर्जी मिनिमम हो तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। आफ्टर दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट पर मिनिमम एनर्जी है, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, maximum stability. This here beta magnitude of attractive forces becomes equal to magnitude of repulsive forces, mean equilibrium point आ गया यहाँ पर, ये forces exist in equilibrium, attractive and repulsive, mean this is the point where these two atoms feel most stable टू ईच अदर। ओके बेटा, एक दूसरे मैक्सिमम स्टेबिलिटी फील करेंगे यहाँ पर, मीन मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी तो मीन बॉन्ड जो यहाँ पर बना है एट दिस डिस्टेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ दिस टू एटम्स, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, इसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं बेटा हम, दिस इज बॉन्ड लेंथ। ओके, आफ्टर दिस अगर इसके बाद हम फर्दर इसको दिस टू इन दोनों एटम्स को नजदीक लेकर जाएंगे, देन रिपल्सिव फोर्सेस बिकम मोर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड देन एनर्जी इंक्रीजेस। तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी एब्रप्टली, एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इस टाइप से, एनर्जी इंक्रीजेस इन दिस वे। थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं एंड सो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी बेटा इन दिस वे। ओके, मीन एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज, बिकॉज यू नो वेरी वेल बेटा स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, हमेशा ये पॉइंट ऑफ माइंड में रखो। ओके, अगर एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज, मीन दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड एट दिस पॉइंट ओरिजिन से अगर हम इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे, सो दिस इज डी नॉट, इसको डी नॉट बोलेंगे बेटा हम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा ये डी नॉट, दिस डिस्टेंस इज डी नॉट एंड दिस डिस्टेंस डी नॉट है जो, इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं बेटा, इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं बेटा, दिस इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ होगी। बॉन्ड लेंथ मीन बेटा डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, दो एटम है जो कंबाइन किए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है। एंड इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल बेटा जो डी नोट की वैल्यू है इन H2 मॉलिक्यूल, दिस इज बेटा 74 पिकोमीटर, मीन बॉन्ड लेंथ जो होती है बिटवीन दीज टू एटम्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज 74 पिकोमीटर होती है, मीन एट दिस डिस्टेंस molecule is stable, mean this is the point of maximum stability when distance between the nuclei of these two combining atoms, these two hydrogen atoms is 74 picometer, तो यही बॉन्ड लेंथ मानेंगे हम, ठीक है ना।
सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट कि हमने यहाँ पर देखा कि जब दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज, पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा, मीन यहाँ पर बॉन्ड बन गया है। इसके बाद अगर इससे नजदीक लेके जाएंगे तो एनर्जी रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मोर हो जाएगा देन अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए एनर्जी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई और स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो जाएगी फिर से। ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बेटा इसको बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी हमने ग्राफ से भी की हेल्प से भी डिस्कस किया है ये, एंड विद द हेल्प ऑफ these forces of attraction and repulsion. Now second example I am going to take here बेटा, non formation of He2 molecule. नोबल गैस होती है H, हीलियम इज नोबल गैस बेटा। नोबल गैस इज एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म, ओके। और मोनोएटॉमिक फॉर्म में इसका मतलब नॉन फॉर्मेशन करेंगे, नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2 molecule, He2 molecule कि वैसे अगर वैलेंसी के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हीलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 डुप्लेट कंप्लीट है इसका, हीलियम कंबाइन ही नहीं करेगा। अगर वैलेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैलेंसी 0 होती है हीलियम की, मीन कंबाइन नहीं करेगा, इसका कंबाइन नहीं करेगा तो He2 एग्जिस्ट नहीं करता, मीन नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ओके। कैसे एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म में, दिस टाइम वी कंसिडर हेयर बेटा अगेन वही, जब दो हीलियम के एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे एक दूसरे से तो क्या होगा बेटा एट दैट टाइम बेटा अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर नेग्लिजिबल एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज 0 होती है वहां पर, ओके। तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, क्या नाम 2 पॉजिटिव लगा देता हूँ मैं, दिस +2, क्यों एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का बेटा, एटॉम नंबर 2, तो +2 चार्ज होगा न्यूक्लियस पर। नाउ अब इलेक्ट्रॉन भी 2 है, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस सेल ऑफ हीलियम, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। देखिए दोबारा से थोड़ा बना लेते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। नाउ दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनदर E डैश, ये ले लिया E डैश, अनदर इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम A, हीलियम का एटम A है ये, एटम A ही लिख देता हूँ, सिंपल, जगह नहीं इतनी यहाँ पर। दिस इज एटम A बेटा एंड सपोज दिस इज एटम B, इसलिए हमने E डैश लिखा, ये EB एंड वी कैन राइट दिस बेटा EB डैश, ठीक है। फिर वही इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकते हैं, न्यूक्लियस को रिपेल कर सकते हैं, ये न्यूक्लियस रिपेल करेगा इसको बेटा, दिस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर सकता है बेटा, दिस, ओके। नाउ सिमिलरली दिस इलेक्ट्रॉन कैन रिपेल टू दिस, ये रिपेल कर दिया इसने इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल कर सकता है, अगेन सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर सकता है, अगेन वी कैन रिप्रेजेंट दिस। सी हियर दीज आर द रिपल्सिव फोर्सेस, कितने हो गए 1 2 3 4 5 रिपल्सिव फोर्सेस, 5 रिपल्सिव फोर्सेस आ गए। Now we want to check attractive forces also. We want to check beta attractive forces also in this. Attractive forces के लिए अलग से बना रहा हूँ मैं ग्राफ यहाँ पर, ठीक है। Attractive forces के लिए मैं अलग से सेपरेट ग्राफ बना रहा हूँ बेटा यहाँ पर। Again this is atom A of helium, this is atom B of helium, this atom A, atom B. Now this is electron A, एटम का है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए E डैश, एटम बी का इलेक्ट्रॉन है EB, ये EB डैश आ गया बेटा दिस। नाउ
बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस हमें चेक करना है, क्या होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस बेटा। न्यूक्लियस ऑफ वन एटम कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। देखो कैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। नोट सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा दिस। सिमिलरली ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है। दिस न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। अगेन न्यूक्लियस ऑफ एटम ए कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेज। जो रेड लाइन से, सॉलिड रेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज हो गए। 4 अट्रैक्टिव फोर्सेज जनरेट हुए हैं। न्यू फोर्सेज लिखने आपको, ओरिजिनल तो थे जो थे, है ना। तो 4 अट्रैक्टिव फोर्सेज आ गए। For new attractive forces हैं, okay, and these are 5 new repulsive forces हैं। तो now what happened बेटा, see here, magnitude किसका ज़्यादा है? Repulsive forces are more than attractive forces, so what happened? So He2 molecule does not exist. In He2 molecule क्या मिला आपको? Magnitude of attractive forces is less than repulsive. Less कर देता हूँ यहाँ पर, और we can say repulsive का more हो गया, is less than repulsive forces, so He2 molecule cannot exist, इसलिए एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता बेटा। कैनॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी पॉइंट है। ओके, नाउ इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाए, एनर्जी ग्राफ बनाए बेटा, देखो कैसे बनेगा। फिर छोटा सा यहीं बना देता हूँ मैं। सी हियर, x axis, ये y axis बेटा। along y axis we take potential energy, potential energy लेंगे। here we take inter nuclear distance, this बेटा। initially when these two helium atoms are at infinite distance, then energy is considered to be 0. When these atoms approach to each other, then what happen बेटा, क्या होगा? Their energy increases। यहाँ पर क्या, repulsive forces ज़्यादा होते जाते हैं than attractive forces, so energy increase होती जाएगी, and we can say molecule cannot exist। minimum energy का पॉइंट आया ही नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से चले थे, उसके बाद मिनिमम एनर्जी का पॉइंट आया नहीं, उसके बाद ज़्यादा ही ज़्यादा होती गई एनर्जी, मीन स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही, मीन कैन नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड बनेगा ही नहीं यहाँ पर। ओके, सो ये एनर्जी के टर्म में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी है बेटा इसकी। ओके, बिल्कुल इजी पॉइंट है, ध्यान से अगर आप करेंगे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बड़ा ही ईजी है पॉइंट ये। ओके, नाउ सेकेंड कंसिडरेशन बेटा, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ orbital overlap concept, orbital overlap concept के टर्म में देखिए, तो दो कॉन्सेप्ट हैं वीबीटी के, फर्स्ट एनर्जी कंसिडरेशन एंड सेकंड इज बेटा ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी कैन एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट a covalent bond is formed by overlapping of half filled atomic orbitals having electrons with opposite spin। okay, according to this concept beta, according to this concept a covalent bond is formed, covalent bond is formed by partial overlapping ऑफ, ये ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी स्ट्रेंथ जो होगी बॉन्ड की मोर हो जाएगी। पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड
atomic orbitals, half filled atomic orbitals having electrons with opposite spin, having electrons with opposite spin. स्पिन जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स की दोनों ऑर्बिटल में अपोजिट होंगे। ओके, तो अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। उस टाइम पर जो पार्शियल ओवरलैपिंग होगी इन एटॉमिक ऑर्बिटल की, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की बेटा, तो जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस फॉर्मेशन बेटा? तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय overlapping of half filled atomic orbital, that is बेटा this can be formed by SS overlapping हो सकती है बेटा, SPZ overlapping हो सकती है बेटा, PZ overlapping हो सकती है बेटा, ठीक ना। कोवलेंट बॉन्ड है, PX की ओवरलैपिंग हो सकती है बेटा, ठीक है। तो वो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में डिस्कस करेंगे। पहले मैं सिंपल यहाँ पर अभी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर, कि फर्स्ट example I am going to give you, that is formation of H2 molecule. For example देखो, for example बेटा formation of hydrogen molecule हम शो करेंगे यहाँ पर according to this formation of H2 molecule। कैसे? H2 molecule में बेटा हाइड्रोजन एटम्स हैं दो। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है बेटा। 1s1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मीन s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। 1s ऑर्बिटल आएगा, दिस इज s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम प्लस दिस इज s ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। दोनों हाइड्रोजन एटम्स के s ऑर्बिटल हमने ले लिए हैं बेटा यहाँ पर। ओके, बट कंडीशन क्या है? ये s ऑर्बिटल जो होंगे हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, ये ध्यान रखना है। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ this s orbital, this is nucleus of this one s orbital। okay, इन दोनों के न्यूक्लियस हो गए बेटा ये। now what happens, देखिए ये न्यूक्लियस हो गया इनका। now what happen बेटा, s orbital है ये। अब पॉइंट क्या है बेटा, या डॉट लगा दो या प्लस से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दिस s orbital has electron in clockwise spin, तो इसका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। सेम स्पिन में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्शन। अब बेटा सेम स्पिन में अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रिपल्शन होगा उनके बीच में। एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट स्पिन देन अट्रैक्शन विल बी देयर, बॉन्ड विल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विल फॉर्म, ठीक है ना। प्रॉपर ओवरलैपिंग विल बी देयर। ओके, सो व्हाट हैपेंस, वी हैव टू टेक दीज इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन बेटा। व्हाट हैपेंस नाउ, देखिए। सो दो s ऑर्बिटल्स हैं, दिस s ऑर्बिटल बेटा ओवरलैप विद ईच अदर, ये ओवरलैपिंग हो गई इनकी। दिस ये ओवरलैपिंग शो कर दी हमने यहाँ पर, ओवरलैपिंग हो गई बेटा। दिस व्हाट हैपेंस, दिस इज ओवरलैपिंग पोर्शन, ये ओवरलैपिंग पोर्शन हो गया बेटा। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, ये था। नाउ व्हाट हैपेंस, ये ओवरलैपिंग पोर्शन आ गया बेटा। दिस इज वन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम, अनदर दिस इज इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ है, अनदर एटम का इलेक्ट्रॉन है बेटा। दिस ओवरलैपिंग हो गई। तो ये ओवरलैपिंग होने के बाद जो बॉन्ड बन गया यहाँ पर, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया बेटा। एंड कोवलेंट बॉन्ड बना है तो सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल बन गया बेटा, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन हम रिप्रेजेंट ऐसे दिखा सकते हैं इसको, सिंपल। Now second example we are going to take, that is formation of beta HF molecule। second example formation of HF molecule, second example ले लेते हैं हम यहीं पर। HF molecule में क्या होगा बेटा, सेकंड एटम किसका लेना है हमें? फ्लोरीन का लेना है। अब देखिए formation of HF molecule, HF molecule का formation शो करेंगे हम। वन इज हाइड्रोजन एटम, अनदर इज फ्लोरीन एटम बेटा। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन px2 py2 pz में क्या आ जाएगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? तो इस टाइप से हमें यहाँ पर फिलिंग करनी पड़ेगी।
एंड एक पॉइंट आप माइंड में रखना बेटा कि जेड एक्सिस इज कंसिडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑलवेज। ये पॉइंट बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जेड एक्सिस इज कंसिडर्ड एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो जेड एक्सिस इज कंसिडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बेटा, ये ध्यान रखना पॉइंट आप हमेशा। इसलिए हम जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे, तो मीन पी जेड हम ऐसे दिखाएंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ हम जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर देंगे, एक एक्स एक्सिस हो जाएगी, देन वाई एक्सिस हो जाएगी। ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस एक्सिस को कहाँ लेते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ऑल दीज थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज पी जेड, ये पी जेड आ गया बेटा। दीज आर द टू लॉब्स ऑफ पी जेड, दीज आर द टू लॉब्स ऑफ पी एक्स। पी एक्स क्या आ गया बेटा ये, एंड दीज आर द लॉब्स ऑफ पी वाई इन दिस वे। ये फ्लोरीन एटम है बेटा, दिस इज फ्लोरीन एटम के, दिस इज 2pz हो गया, ये 2py हो गया, एंड दिस इज बेटा 2px हो गया, ठीक है। नाउ जेड में वो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ जाएगा, दिस इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फिल किया इसका, ठीक, ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग करेंगे ऑर्बिटल जहाँ पर, इनके इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ आ जाए। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है बिल्कुल, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स, कैसे बनेगा देखिए, दिस इज एस ऑर्बिटल हो गया, ये दिस वन हाइड्रोजन एटम का। जब ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा बेटा, तो जो लोग ओवरलैप कर रहा है वो बिगर हो जाता है, जो ओवरलैप नहीं करता वो स्मॉलर हो जाता है, ध्यान रखना। मीन एक टाइप से हम बोले मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन गया ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करके रखना पॉइंट यहाँ पर बेटा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दिस इज, ये थोड़ा छोटा दिखा देना इधर से, इन दिस पी जेड हो गया, ठीक है ना। ये आपने पी एक्स वाला दिखाया यहाँ पर, दिस इज पी वाई, ये टच करता हुआ जा रहा है इनको, मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं है पी वाई के साथ, ओके। ये इसकी लाइन है दिस। नाउ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ओवरलैपिंग हो गई, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ठीक है। दिस नाउ, सो ये जो मॉलिक्यूल बन गया बेटा, दिस इज बेटा HF मॉलिक्यूल। ये HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन शो कर दिया हमने, दिस इज HF मॉलिक्यूल बेटा। नाउ सिमिलरली वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेटा F2 मॉलिक्यूल्स। F2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं। F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करने तो देखो क्या लेंगे, एक और फ्लोरीन एटम ले लेंगे हम यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी है, जैसे चल रहे वैसे ही। फॉर्मेशन ऑफ, हम यहीं पर इसको अरेंज कर लेते हैं। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल बेटा, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, ये लो दिस इज F2 मॉलिक्यूल। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर वही 9 होता है बेटा। मेन PX PY PZ ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं आपको, सेम उसी मेथड से। ये देखो PX PY PZ, दिस इज सपोज X एक्सिस, ये आपने ली Y एक्सिस, सॉरी ये Y एक्सिस, एंड दिस इज Z एक्सिस। सपोज दीज आर द लॉब्स ऑफ वन फ्लोरीन एटम। PZ हो गया ये, दिस इज PX सपोज, and this is py beta in this way, this ये हो गया बेटा अपना, this is 2pz 2px 2py, ठीक है। now इसमें इलेक्ट्रॉन्स, वन इज क्लॉकवाइज, दिस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2 to 4 and 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए पी में, फिल कर दिए। दिस इज वन फ्लोरीन एटम के ऑर्बिटल्स हैं, एंड दीज आर दी ऑर्बिटल्स ऑफ सेकंड फ्लोरीन एटम। ओवरलैपिंग होगी अब बेटा, अगेन उसी वे से ओवरलैपिंग शो करनी है आपको, सेम प्रोसेस होगा ओवरलैपिंग का बेटा। देखो कैसे, अब मैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ले लेता हूँ फ्लोरीन एटम के लिए, दिस
दिस, ये एक्सिस आ गया बेटा, दिस इज पी जेड। नाउ ये पी एक्स आ गया इसका, ये पी वाई आ गया बेटा इसका, दिस बिल्कुल उसी वे से आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई नया पॉइंट ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन वैसे फिल करने वहाँ पर भी, ठीक है ना। दिस इज F2 मॉलिक्यूल, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। ओके, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन शो कर दिया आपने बेटा, ये ओवरलैपिंग पोर्शन हो गया। अगेन जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसलिए हम पीजेड की ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर बेटा। ओके, सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। अब इसमें छोटा सा एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड्स मीन स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड्स, और ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ HH बॉन्ड, एंड देन वी डिस्कस बेटा HF एंड F2, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मीन किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बेटा। अगर ध्यान से चेक किया जाए तो वीकेस्ट बॉन्ड फ्लोरीन एटम के बीच में है यहाँ पर, ओके। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेटा हाइड्रोजन एटम्स के बीच में है, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड यहाँ पर दैट इज बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम के बीच में है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, दिस इज बेस्ड अपॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आई एम टेलिंग यू दिस बेस्ड अपॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बेटा फ्लोरीन की है 126 किलो जूल पर मोल, हाइड्रोजन के लिए होते हैं बेटा दिस इज 430 किलो जूल पर मोल, HF के लिए होते हैं 566 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यूज होते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यूज हैं। कभी हम सोचें कि कहीं भी कुछ भी ऐसे ही लिख दिया हमने, नो, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यूज है बेटा ये। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर दिस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मोर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मीन बॉन्ड को डिसोसिएट करने में जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतना स्टेबल है, मतलब इजीली डिसोसिएट नहीं हो रहा बॉन्ड, इजीली डिसोसिएट नहीं हो रहा तो स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर है उसकी। ओके, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ इस जगह पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा, व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, क्योंकि टर्म हमने यूज की यहाँ पर, मैं यही बता देता हूँ क्या होती है बेटा। द एनर्जी रिक्वायर्ड, सिंपल सा पॉइंट है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, नेम से ही पता चल रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल of a particular type of bonds, of a particular type of bonds is called bond dissociation energy। इसको bond dissociation energy बोलते हैं बेटा। ओके, so this is all about VBT बेटा। Thanks a lot।